Hello students, welcome to online education. Subject Mathematics, Standard 8, Chapter 3, Understanding Quadrilateral, Session 3. In the previous session, we have completed sums of exercise 3.1, okay, which is based on the angle sum properties of different polygons with different sides, isn't it? Let's do the sums of exercise 3.2. Go ahead. Question number 1. Find x in the following figures. See, in the previous session, we have seen that the sum of exterior angles of a polygon is 360 degree. We have proved with it, we have proved it with triangle and quadrilateral. So the same here we have to find the value of x, and x is a measure of an exterior angle of a triangle and quadrilateral. Okay, so let's solve the first one. Here in the first one, a triangle is having 3 interior angles and as well as 3 exterior angles. I told you कि जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि अगर एक एंगल बनता है तो उसके दूसरे साइड में दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली बन जाता है. क्लियर? सो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन 360 डिग्री, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड. ओके, देन सो 125 plus 125 plus x is equal to 360 degree. So 125 plus 125 is 250. So 250 plus x is equal to 360 degree. Clear? Or x is equal to 360 minus 250, that is 110. Clear? So here value of x is 110 degree. Now let's move to the next one. See, in the next question, a quadrilateral is, no, it is a pentagon. It is a pentagon. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Still, the sum of exterior angle is always 360 degree. It doesn't matter whether it is a quadrilateral or polygon. किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, फिर वो पेंटागन हो या क्वाड्रिलेटरल हो या हेक्सागन हो. क्लियर? सो हियर दिस परपेंडिकुलर साइन इज गिवन. इट मीन्स measure of two angles given, that is 70 degree and 60 degree. अभी ये 90 है तो ये भी 90 है ना. So x plus 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 360 degree, and 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equal to 310. Okay. So x plus 310 is equal to 360 degree, or x is equal to 360 minus 310, that is 50 degree. Clear? So in this way you can easily find the measure of exterior angle. Now find the measure of each exterior angle of a regular polygon. See, जितने इंटीरियर एंगल उतने एक्सटीरियर एंगल, और जितनी साइड्स उतने ही एंगल. अभी ट्रायंगल है तो कितनी साइड्स है? 3 साइड्स, तो एंगल कितने? 3. क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स तो एंगल भी 4. पेंटागन में 5 साइड्स तो एंगल भी 5. क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स and 15 sides. Let's calculate. So number of sides 9. तो number of exterior angle 9. ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स इंटीरियर एंगल का मेजर क्या है? सेम है.
तो डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल का भी सेम होगा, है ना। तो सिंस सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, the given polygon is a regular polygon, so the exterior angles are equal, so measure of an exterior angles is 360 divided by 9, that is 40 degree. Clear? देखो टोटल 360 डिग्री होता है। अभी जितने साइड उतने एंगल, तो साइड दिया है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर एंगल का मेजर दिया है तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? Then number of sides of a regular polygon 15. Again number of equal exterior angles 15, and angle sum property 360 degree. The measure of each exterior angle 360 upon 15, that is 24 degree. Clear? Clear? देखो जैसे जैसे number of sides बढ़ेंगे तो एंगल्स का मेजर छोटे होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो अभी मैंने बताया था ना आपको, ये जितने एंगल उतने ही साइड, तो अगर एंगल का मेजर दिया है, एक एंगल का मेजर दिया है तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया है तो हम एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सो फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, सो नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स, हियर साइड्स, सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, दैट इज 15। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था ना कि 15 साइडेड पॉलीगॉन का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना आया था 24 डिग्री, तो ये जस्ट उसका रिवर्स ही है ना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree। हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल का सम कितना दिया, इंटीरियर एंगल कितना दिया है 165 डिग्री। हमको ये नहीं पता कि कितनी साइड से, क्यों बिना साइड के तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड नहीं कर सकते, है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो 360 होता, पेंटागन होता तो 540 होता, हेक्सागन होता तो 1080 होता, है ना। बट हियर वी डोंट नो द नंबर ऑफ साइड्स एंड विच वी हैव टू फाइंड। सो अब हमें ये पता है कि अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 माइनस 165, क्योंकि एक लाइन के साइड में दो एंगल है, एक का मेजर पता है तो दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 165, दैट इज 15 डिग्री, है ना। अभी जितने, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो जितने इंटीरियर एंगल उतने एक्सटीरियर एंगल, तो 15 डिग्री अगर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर है, so the number of sides is equal to 360 upon 15, that is 24। तो उस पॉलीगॉन के कितनी है साइड 24 साइड्स, इट मीन्स इट इज अ 24 साइडेड पर पॉलीगॉन। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree, and can it be an interior angle of a regular polygon? Why? हमें पहले फाइंड क्या करना है कि हमें ये देखना है कि किसी भी पॉलीगॉन का
रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं। एज गिवन इन द क्वेश्चन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, दैट इज 22 डिग्री। अभी हमको पता है जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी साइड्स होती है। सो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना, दैट इज 180 अपॉन 11। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 2 से करेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 11 जा 180 अपॉन 11 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की साइड हो सके, है ना। इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी ए होल नंबर। उसके नंबर ऑफ साइड्स, मेजर ऑफ साइड देखो, कभी कंफ्यूज नहीं होना। मेजर ऑफ साइड कैन बी 7.2 बट नंबर ऑफ साइड्स 7.2 हो सकता है क्या? नो, आइदर 7 आइदर 8। क्लियर? So if it is a regular polygon then its number of sides must be a whole number, and here 180 upon 11 is not a whole number, so 22 degree cannot be an exterior angle of a regular polygon। आया समझ में? क्लियर? क्योंकि जब हम 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते थे रेगुलर पॉलीगॉन के, यहाँ तो हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मिलता था, और जब 360 को मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ साइड्स मिलती थी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 22 डिग्री इज एन इंटीरियर एंगल देन 180 minus 22 that is 158 is an exterior angle। अभी इसमें क्या पूछा है? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? तो हमको ये देखना है कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या। तो अभी अगर 22 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 माइनस 22 दैट इज 158 डिग्री, इजंट इट? अगेन नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन 150। अभी ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 180, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अगेन इट इज़ नॉट ए होल नंबर, सो 22 डिग्री कैनॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर polygon। Got it? Then question number C, 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Y. And what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Clear? अभी हमको ये नहीं पता कौन सा पॉलीगॉन है, बट रेगुलर पॉलीगॉन है। तो हमको पता है अ पॉलीगॉन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज व्हाट? ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको किसी भी एरिया को बाइंडिंग करने के लिए कितनी साइड्स चाहिए? एटलीस्ट वी नीड 3 साइड्स। सो द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3 एंड द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइडेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेजर कितना है? 60 डिग्री, है ना। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल का कितना? 60 डिग्री, क्योंकि इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। तो अभी अगर इंटीरियर एंगल 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? अभी ट्रायंगल के इस तरफ अगर 60 बनता है तो इस तरफ कितना होगा? 180 minus 60 that is 120 degree। Here is the solution. The sum of an exterior angle and its corresponding interior angle is 180 degree according to the linear pair। अभी minimum interior angle अगर कितना है? minimum interior angle 60 है तो exterior कितना होगा? 180 minus 60 that is 120 degree।
So here we have completed our exercise 3.2, and this is the based on exterior angle sum property of a polygon. So enough for today. Let's meet in the next session. Till then, solve the worksheet given along with the video. Until then, be safe, be at home, and keep on learning. Thank you.